हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ ईपीसी 4 जो कि बीएड सेमेस्टर 4 में है, इसके यूनिट 4 के बारे में। इस यूनिट 4 में एक टॉपिक है बिकमिंग ए सेल्फ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, यानी एक आत्मचिंतनशील शिक्षक बनना है। साथ ही साथ शिक्षण में इसका अनुप्रयोग। कहने का तात्पर्य ये है कि ईपीसी बीएड करिकुलम में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य ही है कैसे शिक्षक अपनी जो आत्मशक्ति है उसको बढ़ाएं। आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि वह चिंतनशील हो और चिंतन मनन करके शिक्षण के कार्य को वह सही तरीके से कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्यू इट इंडिकेट्स दैट सेल्फ रिफ्लेक्टिव is the most important and vital tools for the development of the teacher। एक शिक्षक के लिए हम कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बिना इसके शिक्षक अपने शिक्षण का कार्य सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। अब बात यह आती है एक शिक्षक आत्मचिंतनशील कैसे बने। तो इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक एक एक बिंदुओं पर अपने किए गए कार्य, अपने पाठ्यक्रम जो उसे पढ़ाना है और अपनी गतिविधियाँ और साथ ही साथ शैक्षणिक पृष्ठभूमि का आकलन करे, असेसमेंट करे, तभी और एक एक टॉपिक जो विषय वस्तु को उसे पढ़ाना है उसका सही मूल्यांकन कर ही वह आगे बढ़ सकता है और एक कक्षा में अच्छी तरह से सुगम और सहज भाव से पढ़ा सकता है। सेल्फ रिफ्लेक्टिव it is the way of analysis for the development of the teacher. What types of activity he or she doing in the classroom, it is most important because his main objective is to all round development of the children। उनका मेन जो उद्देश्य है, उसका जो मेन उद्देश्य है वो छात्रों का सर्वांगीण विकास। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आत्मचिंतनशील बनना अति आवश्यक है। एक अच्छे शिक्षक के लिए, एक अच्छे आत्मचिंतनशील शिक्षक के लिए किन किन बातों को क्लासरूम में पढ़ाने के दौरान ध्यान रखना चाहिए, उसकी मैं चर्चा अब आपको विस्तार से करने जा रहा हूँ। Now, first I have described in English mode becoming a self-reflective practitioner, communication pattern while teaching. Self-reflective practitioner becoming an ideal teacher takes continuous effort to avoid the loss of enthusiasm or static practice. Teachers need to focus on their own professional development. The single most significant indicator of student success is an excellent teacher. Nevertheless, no one can be professionally developed without his or her consent. Teachers need to spend time outside the classroom with other dedicated individuals. Over the course of lifetime, ideal teachers are continuously improving their craft, listening to their student, retelling lessons, and finding the gaps in instructional practices. 6 important steps while teaching. My dear student, we emphasize here or we focus here. Number 1, understand your reasons for teaching. Number 1, cultivate ethical behavior in your student and yourself. That means basis of the relationship between teacher and the student. Pool both patience and perseverance. Design curriculum that's work. Perfect instructional practices and assessment skill. Connect positively to the whole school culture. Now, first point, understand your reasons for teaching.
Identifying those who influence you to become a teacher is a fundamental exercise in continued excellence. Almost everyone can name 2 or 3 teachers who changed the course of his or her life. Cultivate ethical behavior in your students and yourself. Although many schools of discipline exist, a teacher can achieve harmony in the classroom, but the real focus of student management lies in instilling ethical behavior. Pull both patience and perseverance. Stamina and endurance are needed for the long haul of teaching. This means finding ways to remain healthy and able minded through the stressful days. Number 4, design curriculum that works. All good teaching requires excellent design and redesign, beginning with a strong curriculum that outlines the most essential ideas. Without a forum for the continuous retelling of their curriculum, teachers are often left to work from a textbook. Number 5, perfect instructional practices and assessment skills. The ongoing development of instructional methods and feedback skills are critical to excellence in teaching. Only through the careful examination of activities and assessment can a teacher guide all students to succeed. Connect positively to the whole school culture. Over time, the master teacher has the capacity to improve the whole school culture through excellence in teaching. The master teacher is consistently working to benefit the school, so he or she is not to competition with colleagues or administrations. नाउ अब मैं हिंदी में इसे स्पष्ट करूं। एक आत्मचिंतनशील शिक्षक बनना शिक्षक के दौरान संचार पैटर्न यानी शिक्षण के दौरान संप्रेषण का तरीका। आत्मचिंतनशील शिक्षक बनना एक आदर्श शिक्षक बनना उत्साह या स्थिर अभ्यास के नुकसान से बचने के लिए निरंतर प्रयास करता है और शिक्षकों को अपने स्वयं के व्यावसायिक विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष रूप से छात्र की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक एक उत्कृष्ट शिक्षक है। फिर भी किसी को भी उसकी सहमति के बिना पेशेवर रूप से विकसित नहीं किया जा सकता। महत्वपूर्ण बने रहने के लिए शिक्षकों को कक्षा के बाहर अन्य समर्पित व्यक्तियों के साथ समय बिताने की आवश्यकता होती है। जीवन भर के दौरान आदर्श शिक्षक लगातार अपने शिल्प में सुधार कर रहे हैं, अपने छात्रों को सुन रहे हैं और पाठों को पुनः सिलाई दैट मीन्स रीमोडिफाई द लेसन सिलाई कर रहे हैं और निर्देशात्मक प्रथाओं में अंतराल पा रहे हैं। पुनः सिलाई का मतलब हुआ पुनः निर्माण करना। पढ़ाने के दौरान 6 महत्वपूर्ण कदम क्या है। नंबर 1, शिक्षण के लिए अपने कारणों को समझें, क्यों आप पढ़ाना चाह रहे हैं। अपने छात्रों अपने आप में नैतिक व्यवहार की खेती करें, इन द सेंस कि नैतिक व्यवहार किस प्रकार का उसको निर्माण करें। धैर्य और दृढ़ता दोनों समूह रचनात्मक पाठ्यक्रम काम करता है। सही निर्देशात्मक अभ्यास और मूल्यांकन कौशल पूरे स्कूल के संस्कृति से सकारात्मक रूप से जुड़े। अब एक एक करके स्पष्ट कर दूं। शिक्षण के लिए अपने कारणों को समझे। शिक्षक बनने के लिए आपको प्रभावित करने वालों की पहचान करना निरंतर उत्कृष्टता में एक मौलिक अभ्यास है। लगभग हर कोई 2 या 3 शिक्षकों का नाम ले सकता है जिन्होंने अपने जीवन के पाठ्यक्रम को बदल दिया। अपने छात्रों अपने आप में नैतिक व्यवहार की खेती करना दैट मीन्स नैतिक व्यवहार का निर्माण करें। हालांकि अनुशासन के कई स्कूल मौजूद हैं। एक शिक्षक कक्षा में सामंजस्य स्थापित कर सकता है, लेकिन छात्र प्रबंधन का असली ध्यान नैतिक व्यवहार को स्थापित करने में है। नंबर 3, धैर्य और दृढ़ता दोनों समूह महत्वपूर्ण है। शिक्षण की लंबी दौड़ के लिए सहन शक्ति और धीरज की आवश्यकता होती है और इसका मतलब तनावपूर्ण दिनों के माध्यम से स्वस्थ और सक्षम रहने के तरीके खोजना है। नंबर 4, रचनात्मक पाठ्यक्रम काम करता है। सभी अच्छे शिक्षणों के लिए उत्कृष्ट रचनात्मक और नए स्वरूप की आवश्यकता होती है, जिसकी शुरुआत एक मजबूत पाठ्यक्रम से होती है जो सबसे आवश्यक विचारों को रेखांकित करता है। सही निर्देशात्मक अभ्यास और मूल्यांकन कौशल शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए अनुदेशात्मक तरीकों और प्रतिक्रिया कौशल के चल रहे विकास महत्वपूर्ण है। गतिविधियों और मूल्यांकन के सावधान परीक्षा के माध्यम से ही एक शिक्षक सभी छात्रों को सफल होने के लिए मार्गदर्शन कर सकता है। पूरे स्कूल की संस्कृति से सकारात्मक रूप से जुड़े। समय के साथ आदर्श शिक्षक के पास शिक्षण में उत्कृष्टता के
माध्यम से पूरे स्कूल की संस्कृति को बेहतर बनाने की क्षमता है। आदर्श शिक्षक लगातार स्कूल को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर सक रहा है, इसलिए वह सहयोगियों या प्रशासन के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं है। इस प्रकार से मैंने इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। On the basis of the above discussion, it indicates that the vital part of the self-reflection is the mode of pattern of teaching. जो अभी मैंने चर्चा की उससे ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि जो आत्मचिंतन शिक्षक के लिए है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि चिंतन शिक्षण के कार्य के लिए किया जाए। कि शिक्षण का कार्य आपका सबसे परफेक्ट कैसे हो, इसके लिए चिंतन करें, अपने गलतियों पर ध्यान दें, उसे सुधार करने की चेष्टा करें और साथ ही साथ छात्रों का विकास कैसे हो उस पर ध्यान दिया जाए। इससे ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि शिक्षक को आत्मचिंतनशील बनना अति आवश्यक है। लास्ट में एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ईपीसी का ऑब्जेक्टिव भी यानी इनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी जो विषय बीएड में शामिल किया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि प्रत्येक प्रशिक्षु शिक्षक जो कि शिक्षक बनने वाले हैं वो चिंतन मनन करके अपने आप को विकसित करें और साथ ही साथ ऐसे अपने जो पढ़ाने वाले आत्मचिंतन करें और साथ ही साथ एक अच्छे शिक्षक बनने की प्रयास करें, चेष्टा करें। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में एक और अच्छे वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। धन्यवाद।